बच्चों कैसे हैं? बढ़िया। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं आपके फिज़िक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है लाइट। ओके, लाइट। ओके, सो व्हाट इज़ लाइट? लाइट मीन्स रोशनी, हिंदी में बोलते हैं रोशनी, करेक्ट। एंड एवरी लाइट सोर्स, एवरी, इसको हम लोग बोलेंगे लाइट source. It produces a ray, okay, and this line is called light ray. So what do we call this line as? Light ray. हिंदी में बोलते हैं ना किरण। ओके, यू नो दैट किरण, किरण मतलब होता है लाइट रे, करेक्ट। नाउ so first we are going to see how do we see an object. हम जैसा किसी चीज़ को देखते हैं, how do we see, what is the phenomenon behind this? Okay, so first this is an object. Okay, suppose this object we want to see, and this is, जैसे मैंने बताया था आपको, light source. So from the light source, light falls on the object, correct? An object is reflected and comes to your eye. Then you visualize an object, correct? So how you visualize an object? Light rays from the light source falls on the object. The light is reflected by the object, and the reflected ray when falls on the eye, you see an object. सिंपल रखिए इसको। लाइट सोर्स से किरण आती है और ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, राइट? जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मेरे ऊपर गिरती है, एंड आफ्टर दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस, हर जगह लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है, एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट विच फॉल्स ऑन योर आई, okay, then you get the sensation of the object, then you see the object. Clear? Logic is simple. So how you see an object? Light from the light source falls on the object, the light is reflected in all the directions, and the reflected light which falls on your eye give the sensation of the object. Simple. Now next I will let you know types of object. Okay, so my dear student, first type of object is called ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट अब तो बचपन से सुने होंगे। ओके, ट्रांसपेरेंट्स आर दोस ऑब्जेक्ट which allows the light to pass through it. लाइट जो है ऑब्जेक्ट से पास होके आगे चले जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ग्लास, बिकॉज थ्रू ग्लास ऑल्सो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, राइट? वाई? बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई वी आर एबल टू सी इवन across the glass. Now next is translucent object. Next is translucent object. So translucent are those objects which allows some light to pass through it. Okay, suppose 100% light falls here. Okay, suppose 3 rays are passing, only it will allow 1 rays to pass through. Rest of the rays are either absorbed और रिफ्लेक्टेड। ठीक है बच्चों, तो यानी जितना रेज इसके ऊपर गिरता है, कुछ लाइट रेस पास हो जाते हैं और कुछ लाइट रेस पास नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, मिल्की वाटर, ओके, यू कैन सी थ्रू इट पार्शियली। मिस्ट ग्लास, ओके, टिंटेड ग्लास,
टिंटेड ग्लास है नहीं, ग्लास के ऊपर आपने देखा होगा काला कलर का हल्का सा लेयर रहता है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं लेकिन कंप्लीटली देख नहीं सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। और कुछ ऑयल पेपर, आप पेपर के ऊपर ऑयल लगा दीजिए, उसके बाद यू सी थ्रू इट, ओके, यू आर एबल टू सी इट, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कम्स दिस, you may be knowing, what is that? Opaque objects. So opaque objects are those objects which do not allow the light ray to pass through it. Light ray pass नहीं हो सकता उसके through. For example, you know, this mobile phone is a opaque object. Why? Because light cannot pass through it. Clear? So like this, your notebook is opaque, correct? One example of translucent is that you can say that curtain, thin cloth is a translucent object because it allows some light to pass through it and some light are not passed through it, correct? So my dear student, these are the example, these are the types of objects. तो कितने तरह के ऑब्जेक्ट हैं? ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट पूरी तरह से पास हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट, जिससे लाइट, कुछ लाइट पास हो सकता है और कुछ लाइट पास नहीं होते हैं, एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट, ओके? सो ओपेक में लाइट कम्स एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक और एब्जॉर्ब्ड बट इट विल नॉट पास थ्रू इट. सो नेक्स्ट स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी, so types, see I am going to exactly following the notes, ओके, जो सीक्वेंस मेरे नोट्स में दिया है वही सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको मेरे पढ़ाई के साथ नोट्स फॉलो करने में आराम होगा, करेक्ट? नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सपोज दिस इज ए मिरर, ये मिरर सब क्या है मैं आपको बताऊंगा. लाइट कम्स, ओके, एंड आफ्टर हिटिंग इट गोज बैक. सो दिस फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट is called reflection of light. So what is reflection of light? It is a phenomenon in which the light rays gets bounced back after hitting the surface. Simple logic. जैसे बॉल है ना, बॉल, if you are throwing a ball against the wall, what happens? The ball hits the wall and comes back. So this coming back of ball is called reflection of ball. So similarly, you know, the light when falls on the surface bounces back. So this bouncing back of light is called reflection. कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल रखिए, ओके? हार्ड टर्म यूज़ मत करिए, ये मत सोचिए समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा क्योंकि ये सब सिंपल बातें हैं. बॉल से तो बचपन से खेलते होंगे, देखा होगा बॉल को जब वॉल के अगेंस्ट मारते हो या नीचे मारते हो तो टपक के वापस आता है, राइट? तो उसी तरह से लाइट जब सरफेस को हिट करता है वो लग के वापस आता है, बस उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. तो ये हाई फाई वर्ड से घबराना मत बच्चों. तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द कमिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. नाउ रिफ्लेक्शन इज बेस्ट परफॉर्म्ड बाई, याद रखिए, पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट. तो रिफ्लेक्शन जो है पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट बोलिए या तो स्मूथ ऑब्जेक्ट बोलिए, दोस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स रिफ्लेक्शन वेरी नाइसली एंड रफ सरफेस परफॉर्म्स रिफ्लेक्शन वेरी बैडली. क्लियर? रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन ठीक से नहीं होता है, स्मूथ सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस में रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया से होता है. एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस फॉर हाईली पॉलिश्ड सरफेस, जैसे ग्लास है, ग्लास परफॉर्म्स गुड रिफ्लेक्शन. आपके घर में स्टील के बर्तन हैं, स्टील के बर्तन, दे आर ऑल्सो वेरी स्मूथ, दे आर ऑल्सो लाइक हाईली पॉलिश्ड, दे डू परफॉर्म बेटर रिफ्लेक्शन. बट योर डोर्स, यू नो, नॉर्मल कॉन्क्रीट, दे डू नॉट परफॉर्म रिफ्लेक्शन. नाउ यू सी दिस लाइट रे इज कमिंग आफ्टर हिटिंग इट गोइंग बैक. So I am drawing one line, you know,
दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. प्रोफाइल याद रखिए, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. क्लियर? माय डियर स्टूडेंट, दिस लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. दिस लाइट रे वी कॉल रिफ्लेक्टेड रे. देखिए नाम से भी कितना क्लियर हो रहा है. इंसिडेंट रे मतलब जो गिर रहा है, राइट? लोकल रहिए, एकदम लोकल सोचिए, कोई हाई फाई चीज़ नहीं है. जब तक मैं हूँ कोई चीज़ हाई फाई नहीं है. करेक्ट? चलिए नेक्स्ट. सारे हाई फाई चीज़ को मैं कच्चा चबा लूँगा, बिल्कुल घबराने का नहीं, एकदम नॉर्मल. रिफ्लेक्टेड रे मतलब क्या है? दिस रेज आर गोइंग बैक, सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड रे. नाउ दिस लाइट रे इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बच्चों नॉर्मल. नॉर्मल आप जब हायर क्लासेस में जाओगे 11th एंड 12th में, देयर नॉर्मल इज द अदर नेम ऑफ परपेंडिकुलर. एंड डोंट यू फील दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस? सो नॉर्मल नेम इज़ वेरी लॉजिकल. इसमें कोई स्पेशल चीज़ है ही नहीं, बिकॉज परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है नॉर्मल. तो देखिए हर चीज़ कितने साइंटिफिकली डिराइव होकर सामने आ रहा है. इंसिडेंट रे जो गिर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो निकल रहा है, करेक्ट? नॉर्मल जो परपेंडिकुलर है. नाउ इफ यू सिंपली फोकस ऑन दिस वन, जैसे मैं नाम देता हूं बच्चों ए ओ बी, दिस इज एन. डोंट यू फील ए ओ एन इज एंगल? एंगल तो ये बना एक एंगल, और एन ओ बी इज एन एंगल, ये बना दूसरा एंगल. भाई एंगल तो है. ये एंगल को क्या नाम देना चाहेंगे आप बताइए? ये एंगल को आप एक नाम दे सकते हैं नॉर्मल एंगल, लेकिन अब नॉर्मल एंगल दोगे तो ये भी हो जाएगा नॉर्मल एंगल, नीचे भी, है ना? तो कौन सा स्पेशल नाम इसको देना चाहोगे? सोचिए ज़रा, साइंटिफिकली सोचिए, बिकॉज हर चीज़ सोचने से आ जाता है. ओके? कैसा क्या नाम देंगे बताइए? ये इंसिडेंट रे है, सो दिस एंगल यू कैन कॉल इट एज इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो माय डियर स्टूडेंट, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट. और नीचे जो जा रहा है, कम ऑन बोलिए, खुद बोलिए, सोचिए, हो जाएगा. हाँ कम ऑन, एंगल ऑफ क्या आएगा बच्चों? रिफ्लेक्शन. बहुत बढ़िया, है ना? तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इट इज द एंगल between the, come on, incident ray and normal. And what is angle of reflection? It is the angle between the normal and the reflected ray. Correct? चलिए, so this is the profile of reflection of light. आसान है ना? हार्ड तो नहीं है. ठीक है, तो बताइए once again, small revision. What is reflection? It is a phenomenon in which light after hitting the surface bounces back. Clear? Now what is angle incident ray? The ray which falls to the surface is incident ray. What is reflected ray? The light ray which after reflection bounces back is called a reflected ray. What is normal? Normal is a line which is perpendicular to the surface. What is angle of incidence? It is the angle between the incident ray and the normal. What is reflected angle? Angle of reflection, angle between the normal and the reflected ray. सब आसान, बहुत आसान. चलिए बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये आप 8th क्लास में पढ़ोगे. ओके? सो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ सेज दैट, अब बताइए फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है, पढ़िए ज़रा इसको, ये मैथमेटिक्स में लिखा है, इसको इंग्लिश में चेंज करिए. द फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सिंपल. यानी ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल हमेशा सेम होगा. ऊपर 30 नीचे 30, ऊपर 20 नीचे 20, ऊपर 60 नीचे 60. काम खत्म. कहाँ हार्ड है भाई ये तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ना, आप सीधा बोल सकते हैं. द फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज नंबर 2. नंबर 2 ये बोल रहा है कि द इंसिडेंट रे IR नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल
lie in the same plane. सेम प्लेन, अभी आपको सोचना पड़ेगा सेम प्लेन मतलब क्या है. सेम प्लेन मतलब बच्चों जैसे देखिए ये मेरा 3 उंगली है, राइट. ये तीनों उंगली देखिए एकदम सीधा है, एकदम बराबर. अगर मैं यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन रखूँ तो देखिए ये तीनों उंगली ने मेरे मोबाइल फ़ोन को टच किया है. सो यू कैन से दैट दिस 3 फिंगर्स लाई ऑन द प्लेन एंड द प्लेन इज दिस मोबाइल फ़ोन. ओके, तो यानी अगर मैं इस उंगली को बोलूँगा इंसिडेंट रे, मैं इसको बोलूँगा रिफ्लेक्टेड रे, ये बीच वाला क्या है नॉर्मल. देन द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सेम प्लेन. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए मैंने ऐसे रखा और ये उंगली को मैंने ऐसे खींच दिया. अब देखिए दिस 2 फिंगर आर इन द सेम प्लेन, दिस फिंगर आर इन अनदर प्लेन. तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, एकदम फ्लैट होगा, सीधा होगा. यानी आप तीनों उंगली को अगर बोर्ड में रखोगे तो तीनों उंगली टच हो जाएगा. चलो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ. त्रिशूल देखो होगा आप लोग, शिव भगवान का त्रिशूल. त्रिशूल में देखिए जो 3 स्पाइक्स निकल रहे हैं वो एकदम एक दूसरे के सीधे रहेंगे, फ्लैट रहेंगे. ओके, सो जैसे है ना, ऐसा होता है ना त्रिशूल भाई, ऐसे आता है, इट गोज समथिंग लाइक दिस. ओके, ऐसे होता है त्रिशूल का मॉडल. ऐसे मैंने बना दिया देखिए फिगर में रफली. तो ये तीनों जो नीडल हैं ये एकदम एक दूसरे के सीधे रहेंगे, दे विल बी स्ट्रेट, उसको बोलते हैं. अगर एक भी नीडल में टेढ़ा कर दिया देन दे विल नॉट लाई इन द सेम प्लेन. क्लियर? सो व्हाट डू यू लर्न माय डियर स्टूडेंट? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सो दीज आर द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया. अब आगे बढ़ते हैं. और तो एकदम क्लियर, कोई डर तो नहीं है. ये लाइट रेज आ रही है, टकरा के जा रही है, ऊपर का एंगल नीचे का एंगल सेम होगा. ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन है. सेम प्लेन मैंने बता दिया है कि एकदम सीधा रहेंगे वो, और वो तीनों को मैं किसी सरफेस के ऊपर पे रख सकता हूँ. वन मोर एग्जांपल, ब्रेकफास्ट करने के लिए, खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं ना फोर्क, करेक्ट? देखा होगा उसमें नीडल निकला रहता है और वो सारा नीडल ऑलमोस्ट सीधा रहता है, उसको बोलते हैं सेम प्लेन. तो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू talk about property of image formed by plane mirror. देखिए मिरर क्या है, चलिए मिरर के बारे में आपको बताता हूँ. मिरर इज ए सरफेस, मिरर इज ए स्मूथ सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस which reflects the light efficiently. Okay, which reflects the light efficiently. तो बच्चों what is mirror बताइए? Mirror is a flat, not flat नहीं, flat होना ज़रूरी नहीं है. तो mirror is a highly polished surface which reflects the light very efficiently. और there are concept of mirror is that यहाँ पे हम उसको कर देते हैं सिल्वर्ड. ओके बच्चों, क्या कर देते हैं? सिल्वर्ड. ओके, सिल्वर्ड क्यों करते हैं? बिकॉज इफ आई डू द सिल्वर देन लाइट फॉल्स एंड रिफ्लेक्ट बैकवर्ड. अगर मैं सिल्वर नहीं करूँगा तो क्या होगा बताइए? लाइट आके इससे टकराएगी एंड बीइंग ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट द लाइट विल पास थ्रू. ओके, सो the light should not pass through, for that we are putting the silver. Either you can put silver and or you can put black paint. क्या डाल सकते हैं? Black paint. So this is the concept of mirror. Okay my dear student. Now next, there are types of mirror. Fine. Basically there are 3 types of mirror. One is called concave mirror. Next is convex mirror. और एक बोलते हैं प्लेन मिरर. सो ये 3 मिरर है बच्चों जो आपको पढ़ना है. प्लेन मिरर you have studied in 8th class. Okay, and now we are going to study concave mirror and convex mirror. Clear?
चलिए प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्लेन मिरर नाम से पता चलता है आपको, इट इज़ फ्लैट। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच नाउ, प्लेन मिरर। ओके, so plane mirror is one which is actually flat. Okay, now I am keeping the object over here. Suppose this object I am writing like B, बड़ा सा B मैंने लिख दिया बच्चों, और ये B को आप लोग क्या मान लेना है, object. Correct? Now you get image here, you get image here. प्लेन मिरर, प्लेन मिरर यानी आप घर में जो बाल झाड़ने के लिए मिरर यूज़ करते हैं ना, सो दैट इज़ ए प्लेन मिरर। करेक्ट, आप देखा होगा कि इन प्लेन मिरर आपका जो शक्ल है वो मिरर के अंदर बनता है। तो ये आपका फेस है और मिरर के अंदर ये जो बना इसको हम लोग बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे बच्चों, इमेज। क्लियर? तो मैंने बताया था ना आपको हाउ वी सी एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से लाइट रेस निकलता है, लॉट ऑफ लाइट रेस आर कमिंग and falling on the plane mirror, and after that what happens, tell me? The light rays are getting reflected in different directions. I told you this is a mirror, so it will reflect the light. Okay, and because of the reflection you can see this image. ये reflection के वजह से आप ये image देख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे करके पीछे कर दिया। करेक्ट, तो ये जो मैंने पीछे किया है डॉटेड लाइट, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? So as I told you, observation is very very important. तो मैंने आपको एक फिगर बना के बता दिया है, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज और ये है प्लेन मिरर। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror. ओके बच्चों, तो ये प्रॉपर्टीज़ मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग को खुद दिमाग लगाना है और बताना है। तो बताइए, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, सो व्हाट थिंग यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आप ये देख सकते हो कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इफ इट इज 10 centimeter, then this distance will also be 10 centimeter. क्लियर? ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम रहता है। तो हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू इंग्लिश, टेल मी। इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लग रहा है आप लोगों को, सुनिए। Image is formed, image is as far behind the mirror. ओके, यानी इमेज मिरर से उतना पीछे है जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर से आगे है। क्लियर? तो वंस अगेन टेल मी, द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये क्लियर है। अगर आपको उसको सिंपल वर्ड में लिखना है, ऐसे बोल सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अगर ये भी तकलीफ हो रहा है, आपको एकदम सिंपल वर्ड में लिखना है, यू कैन राइट इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो व्हाट क्या लिखेंगे आप? इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये आ गया नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी सोचिए, जरा सोचिए, बताइए। अभी आप देख रहे होंगे इसका जो साइज़ है और इसका जो साइज़ है सेम है, भले ही दिखता थोड़ा सा अलग है, बट द साइजेस आर सेम। So what will you say? Come on, what will you say? You will say that size of object is equal to size of image. तो
ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है और इमेज का जो साइज़ है वो दोनों सेम है। क्लियर है? कम ऑन, थर्ड प्रॉपर्टी व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, टेल मी फटाफट। थर्ड प्रॉपर्टी है जो शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा दूंगा बाद में, दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बोलेंगे? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाट इज वर्चुअल इमेज? आई विल एक्सप्लेन यू। इरेक्ट मतलब है सीधा, इरेक्ट मतलब है सीधा, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी सीधा है और आपका जो इमेज है वो भी सीधा है। क्लियर है? तो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी आप देख रहे होंगे, आई एम राइटिंग बी लाइक दिस, ओके, एंड हियर इट बिकम्स व्हाट? इन्वर्टेड। हाउ इट इन्वर्टेड? लेफ्ट में ये डंडा दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए राइट में हो गया ये डंडा। नाउ दिस curve is on the right side, here it becomes left side. This phenomenon is called lateral inversion. क्या बोलते हैं इसको? lateral inversion या तो lateral inversion. So lateral inversion is a phenomenon in which left side of the object becomes right side of the image and right side of the object becomes left side of the image. So this is lateral inversion. तो my dear student, these are the four properties of the image formed by plane mirror. Clear है? तो बताइए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? The image distance is equal to object distance. Second property क्या है? The size of the image and the size of the objects are same. Third property क्या है? Virtual and erect. Virtual मैं बताऊंगा आपको क्या है, erect मतलब सीधा. Fourth property क्या है? Lateral inversion. And lateral inversion I told you, the left side of the object becomes right side of the image and right side of the object becomes left side of the image. Clear है? तो बनाना कैसा है? देखिए lateral inversion का, अगर A है, देखिए तो lateral inversion होने के बाद ये बन जाएगा A. If I am writing B, okay, now you change it, इसको ऐसे पलटी कर दीजिए तो ये बन जाएगा B. I am writing C, ओके, इसको ऐसे पलटी कर दीजिए, ये बन जाएगा C. I am writing D, ये कैसे बनेगा बताइए? इसको ऐसे पलटी कर देना है, दिस बिकम्स D. ठीक है बच्चों? तो ये है ऑब्जेक्ट. तो व्हाट इज दिस? ऑब्जेक्ट. और ये क्या है? इमेज. क्लियर है? दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. ठीक है? तो बच्चों इसी के साथ मैं आपका बेसिक ख़त्म करता हूँ यहाँ पे. नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं आपको बताऊँगा कि स्फेरिकल मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है. क्लियर है? तो घबराना मतलब ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, सब आपका माइंडसेट है. अगर आप घबरा के पढ़ोगे तो आपको हार्ड लगेगा, अगर आप समझ के लोकल होके सिंपल होके पढ़ोगे तो आप ग्लोबल बनोगे. क्लियर है? तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मिलूँगा मैं आपको.